Dear learners, now we will discuss one of the very important aspects in mathematics, that is your trigonometry. Learners, we know that there are different branches in mathematics. We have learned about the arithmetic, we have also learned about geometry, also learned about the mensuration. Similarly, trigonometry is the separate branch that comes under mathematics, and now we will be more discuss about the trigonometry. When talking about trigonometry, of course, it is the combination of, we can say it is the combination of your arithmetics as well as your geometry as well as the mensuration, because under trigonometry we will be consider, we will be take, we will be discuss about the properties under your geometry, that is your triangles. Also we learnt about some numbers. So we can say it is the combination of arithmetics, your geometry, then we will be able to learn about the trigonometry. When talking about trigonometry, trigonometry is the combination of, we can say trigonometry, T-R-Y. You see, Trigonometry. It is the combination of, we can say, three words. Tri, we can say gon, metry. Okay. When talking about trigonometry, you will be see there is no doubt, we can say tri and we can say also tri. Tri stand for 3, T-H-R-E-E, and we know metry stand for measures, we can say measurement also. So when talking about trigonometry is consist of three words, three different words. Basically these three words come the Greek word. Tri matlab three, gon and metry. When talking about gon stand for sides, we can say sides. Metry stand for measures or measurement, whatever it may be. That means three sides measurement, and we know that a geometrical figures, a closed geometrical figure having three sides is nothing but a triangles. So we can say trigonometry consists of three words, one is three sides measurement, and basically when talking about three sides, in the same times we also learn about three sides means three angles also. So on second step we can say trigonometry is the measurement of trigonometry is the measurement of, second condition को आएंगे कि measurement of sides and angles of a triangle. मतलब ट्रायंगल का साइड्स एंड एंगल का मेजरमेंट करने के लिए हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना जरूरी है. It is the second definition we can refine from the trigonometry. If we will move another steps, we can say another steps of definition will be find which type of triangles. We know that in triangles there are different types of triangles. We can categorize triangles on basis of the sides, on basis of the angles, and basically when talking about the basis of the angles, we know that triangles is the right angle triangles, we can say equilateral triangles, and we can say isosceles triangles. You see, when talking about the triangle under trigonometry, basically we will be in the preliminary stage, we will be more discuss about the right angle triangles, or we can say measurement of sides and angle of a right angle triangle. And we know that what is the right angle triangles. Right angle triangles, dear learners, we know that in a triangles, if one angle, again I am repeating, if one angle is 90 degree,
90 degree in the sense, if one side is perpendicular to another side, that means a side is perpendicular to the base, then we can say this is the right angle triangle. और मैं एक एग्जाम्पल ले जाऊं और आसानी से हम समझ पाएंगे जो चीज हम पढ़ चुके हैं. We can say this is the right angle triangle. Why? This angle is 90 degree. Suppose ABC is a triangle, B is the right angle, here AB is perpendicular to BC, or we can say AB is perpendicular BC and in the angle B is 90 degree, so it is called the right angle triangle. And इसका बारे में हम चर्चा कर चुके हैं. एंड ट्रिग्नोमेट्री का अंडर पे जो हम पढ़ाई करेंगे कि ये एंगल, ये साइड्स का मेजरमेंट, ये साइड इतने हैं तो ये साइड क्या होगा, अगर ये एंगल 90 है ये एंगल कितना होगा, इसके बारे पे हम चर्चा करेंगे. क्यों, अगर मैं बात करूं क्यों जरूरी है ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, आप ये फिगर को देख सकते हैं. आप ये जो फिगर है हमारे डे टू डे लाइफ में हम बहुत बार हम यूज करते हैं कि यहाँ पे देयर आर द डिफरेंट एंगल्स क्रिएटेड, डिफरेंट एंगल्स. यहाँ पे एक मछली पकड़ने के लिए हम एक तरीका हम जो यूज करते हैं, आप देख सकते हैं किस एंगल पे हम मछली को उठाएंगे और कैसे उठाएंगे कि ज़्यादा दूर जा सकता है. और वी कैन से देयर आर द डिफरेंट एंगल्स, दैट एंगल्स may be acute, obtuse, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स. इसका बारे में हम कितने मेजरमेंट करके एक मछली को पकड़ सकते हैं, ये तो एक बेसिक चीज़ है, जो बेसिक चीज़ हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. अगर ट्रिग्नोमेट्री का हम एप्लीकेशन का बारे में बताऊं तो आप तो एहसान हो जाओगे कि इतने सारे एप्लीकेशन हमारे डे टू डे लाइफ में है. हम जो एरोप्लेन चलाते हैं, एरोप्लेन जो एक पर्टिकुलर ट्रैफिक होता है, जैसे हमारा रोड में चलने के लिए एक ट्रैफिक होता है कि रोड पे चलेगा, गाड़ी जो चल रहा है एक ट्रैफिक आता है कि कौन सा मोड़ पे जाएंगे, कैसे जाएंगे. सिमिलरली जो फ्लाइट एयर पे चलता है तो किस एंगल पे जाना है, और एक रूट से दूसरे रूट को जाने का कट करना है तो किस एंगल पे करना है. और नाविगेशन इन द सेंस, इन द ब्रांच ऑफ नाविगेशन, जैसे हम समुद्र पे अगर हमारा जहाज चल रहा है तो कहाँ एक ऑब्स्टेकल क्रिएट होगा और किस एंगल पे हम जाएंगे कि दूसरा देश पे हम पहुंच पाएंगे. ये सारे जो स्टडी है आपका एस्ट्रोनॉमी पे, आपका नाविगेशन और आपका इंजीनियरिंग ब्रांच में, और इसका एप्लीकेशन हर ब्रांच में. मैथमेटिक्स में तो है, द रूट ऑफ मैथमेटिक्स जस्ट आपको एक वैल्यू देगा ट्रिग्नोमेट्री कैसे हेल्प कर रहा है, लेकिन रियल जो एप्लीकेशन है हमारा डे टू डे लाइफ में है नाविगेशन पे, एस्ट्रोनॉमी पे, आपका जो एस्ट्रोफिजिक्स में, आपका इंजीनियरिंग ब्रांच में, जियोग्राफी पे, सर्वे करने के लिए हर जगह पे कोई एक प्लेस का लोकेशन अगर क्रिएट करना है, लोकेशन को पहुंचना है तो एक एंगल जरूरी होता है. तो ये इसका जरूरी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना बहुत जरूरी होता है. इवन हम लोग एक गन फायरिंग करते हैं, जो शत्रु को हम मारते हैं, गन फायरिंग करते हैं, किस एंगल पे हम गन को रखेंगे तो ये ज़्यादा स्पीड में जा सकता है और सही निशान पे पहुंच जाएगा. ये सब जो मेजरमेंट है ये ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. उनको पढ़ेंगे हम. तो आज ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा बेसिक चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन उनका एप्लीकेशन हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे उनका एप्लीकेशन बढ़ते जाएगा. हमारा डे टू डे लाइफ में हम यूज करने के लिए हमको बहुत आसान मिलेगा. तो मैं तो इतने बता सकती हूँ, ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ाई करेंगे. ऑफकोर्स हमारा एग्जाम में तो हेल्पफुल होगा, हमारा डे टू डे लाइफ में भी हेल्पफुल होगा. और दूसरे सब्जेक्ट जैसे हम आगे जैसे क्लास 12 में फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे कि इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, तो इसी जगह पे बहुत सारे एप्लीकेशन है. लेट्स विल बी सम डिस्कशन, बेसिक डिस्कशन अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, जहाँ पर हम बात किए थे कि ट्रिग्नोमेट्री बारे पे जो हम चर्चा कर चुके हैं. ट्रिग्नोमेट्री कंसिस्ट ऑफ 3 साइड्स, द मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि हम जितने भी स्टडी करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बारे पे चर्चा करेंगे. राइट नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए
एक बेसिक जो फॉर्मूला होता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, ये दोनों का कंसेप्ट बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट इज ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, एंड ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो का बारे में हम बात करेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल को लेके बात करेंगे। ओके, सो राइट नाउ विल बी डिस्कस अबाउट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। रेशियो का मतलब तो आपको पता है, रेशियो स्टैंड फॉर आपका ये होता है कि वन डिवाइडेड बाय अनदर, और वी कैन से वन साइड डिवाइडेड बाय अनदर साइड। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, अभी तो बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो बारे में, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। जैसे मैं बात किए थे एक राइट एंगल ट्रायंगल पे, अगर मैं बात करूं राइट एंगल ट्रायंगल, dear learners, this is the a right angle triangle, suppose and this is the acute angle. We know that suppose ABC, we can say ABC is the right angle triangle and angle B is the right angle, that means this angle is 90 degree. Suppose this is theta, okay, and this is the acute angle. We can say trigonometry ratio of a acute angle of a right angle triangle. Okay, so now we can say AB is perpendicular to BC. यहाँ ये जो ABC is a right angle triangle, यहाँ हम बता सकते हैं AB is perpendicular to BC. Okay, AB is perpendicular to BC stand for angle B is that 90 degree. One more things we must have to understand, जो right angle triangle होता है, this is the height, we can say this is the height जिसको हम perpendicular बोलते हैं। perpendicular we can say perpendicular, we can say height, दोनों का मतलब सेम है, और we generally nomenclature जो करते हैं P पे, दिस इज द परपेंडिकुलर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू द बेस। बेस का मतलब जो जैसे हमारा फ्लोर एक बेस है, तो ट्रायंगल का बेस मतलब जिसका ऊपर ये ट्रायंगल खड़ा है। ओके, सो दिस इज द BC एंड जिसको हम बोलते हैं बेस ऑफ द ट्रायंगल, और उनको हम B से नोमेनक्लेचर करेंगे, दिस इज द P को नोमेनक्लेचर करेंगे, एंड AC इज द हाइपोटेन्यूज। वी कैन से दिस इज द डायगोनल्स ऑफ द ट्रायंगल, एंड वी कैन से हाइपोटेन्यूज और स्मॉल h पे हम यूज करते हैं। दिस इज द नोमेनक्लेचर हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स डियर लर्नर्स, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, angle B is the 90 degree and perpendicular AB is perpendicular to base BC and AC is the hypotenuse, जिसको हम H से हम नोमेनक्लेचर करते हैं, डिफाइन करते हैं। सो वी कैन safely say AB equal to P, BC equal to B and AC equal to H. Okay, right now we will come to know what are the different functions under the trigonometry, जिसको one of the function is sin function बोलते हैं, SINE, जिसको हम बोलते हैं sin function. ओके, और मैं बात करूं sin function जो है, अगर मैं बात करूं sin function है, ओके, साइन फंक्शन का मतलब ये होता है कि साइन ऑफ द एक्यूट एंगल। अगर मैं बात करूं थीटा, साइन थीटा क्या है, ओके, हम एक फॉर्मूला को हमको पता करना है, क्योंकि फॉर्मूला जब पता चल जाएगा हमको बहुत सारे इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा, देन वी कैन अप्लाई इन द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। जैसे मैं बोला कि फर्स्ट फंक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इज द साइन फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं, एक नंबर पे बोलेंगे हम SINE, साइन फंक्शन, और वी कैन से शॉर्टली वी कैन से SIN, साइन थीटा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, दैट इज द क्वेश्चन। नाउ साइन थीटा का जो फॉर्मूला है हम बता सकते हैं कि साइन थीटा दैट मीन्स साइन ऑफ एक्यूट एंगल थीटा। ओके, साइन थीटा का वैल्यू होगा
ये एक फॉर्मूला है, दैट इज वी कैन से परपेंडिकुलर P by H, that means we can say AB by AC, or we can say, sometimes we can say perpendicular short by hypotenuse. ये तो लंबा बात है, शॉर्टली हम लिखते हैं P by H, that is AB by AC. ये जो रेशियो in the form of P by H, that's why we call as a trigonometric ratio. So first function of the trigonometry is the sine function, and we have find the sin theta, and sin theta का जो वैल्यू होगा P by H, that is the formula, that is perpendicular by hypotenuse, or in this case, in this triangle ABC, the sin theta, that means sin, ये जो थीटा का वैल्यू है, हम तो पहले बात किए थे कि एंगल्स का वैल्यू निकालना है कि साइड का वैल्यू निकालना है, ये चर्चा करेंगे हम ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, जो हम अभी वैल्यू 1 by 1 निकाल रहे हैं। साइन थीटा का वैल्यू होगा आपका P by H, दैट मीन्स AB by AC। ओके, द सेकेंड फंक्शन जिसको हम बोलते हैं, द सेकेंड फंक्शन इज कोसाइन फंक्शन, और जिसको हम शॉर्टली वी कॉल एज ए cos theta, COS, cos theta here. Okay, this is the second case. और cos theta का वैल्यू होगा, cos theta P by H था, cos theta होगा B by H. B by H stand for आपका base by hypotenuse, और we can say BC by AC, or we can say shortly base by hypotenuse. Dear learners, ये जो दो फार्मूला है, ये आप जिंदगी भर ही पढ़ेंगे ये फार्मूला को, क्योंकि ये हर टाइम जरूरी है। कोई भी ट्रिगोनोमेट्री में, कोई जगह पे हम ट्रिगोनोमेट्री का बात कर रहे हैं, साइन थीटा का वैल्यू क्या है P by H, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है B by H. This is the generalized things, and we must have to understand as well as, मैं तो बोलूँगा रिमेंबर भी रखना पड़ेगा, जरूरी है, क्योंकि कैसे होता है, वेरी सिंपल है, साइन थीटा P by H फॉर्म पे आता है और कॉस थीटा B by H आता है। नाउ द थर्ड एंगल बारे पे हम चर्चा करेंगे, जिसको हम बोलते हैं थर्ड एंगल इज द टेन थीटा। टेन थीटा का वैल्यू है, टेन थीटा जो है ये, और एक इंपॉर्टेंट थिंग है, P by H टेन थीटा का होगा P by B, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन थीटा का वैल्यू होगा P by B। ओके, नाउ दिस इज द मेजर थ्री एंगल्स, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। नाउ वी विल कम द अनदर एंगल, that is called the cot theta. cot theta जो है tan थीटा का जस्ट रिवर्स है। tan थीटा का वैल्यू था P by B, और cot थीटा का वैल्यू होगा B by P। मैं यहाँ पे फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला कहाँ यूज करेंगे उसके बारे पे भी हम चर्चा करेंगे। अगर मैं 5 नंबर बोलूँ सेक थीटा का वैल्यू होगा 1 by cos थीटा, 1 by cos थीटा, दैट मीन्स अगर मैं बताऊं सेक थीटा का वैल्यू 1 by cos थीटा, मतलब B by H जो था ये हो जाएगा H by, जस्ट रिवर्स होगा, H by B बन जाएगा। एंड सिक्स्थ एंगल जो होगा दैट इज कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का वैल्यू होगा 1 by sin थीटा, व्हिच इज इक्वल टू, ये था P by H, और जहाँ कोसेक थीटा होगा H by P, जस्ट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होगा। दिस इज द बेसिक थिंग। दीज आर द 6 फंक्शंस, sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta and cosec theta. There are five, we can say 6, there are the total 6 functions, trigonometry function, और trigonometry का जो रेशियो उनका वैल्यू क्या है उनको बारे पे हम डिस्कशन किए। अगर मैं शॉर्टली उनको दोबारा लिखूं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये फॉर्मूला कैसे क्रिएट होता है भी हमको समझ में आ जाएगा अगर हम एक बार
उनको ध्यान से समझ में कोशिश करेंगे। ये बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये फॉर्मूला को बहुत जगह पे हमारा यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं बताया कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा। मैं दोबारा समराइज करता हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं बताया कि साइन थीटा का वैल्यू p/h है। सेकंड जो है कॉस थीटा का वैल्यू होगा, कॉस थीटा का वैल्यू होगा p/h, b/h। टेन थीटा का वैल्यू होगा p/b। देखिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों एंगल पता चल गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अगर मैं उनको जस्ट रिवर्स करूं, अगर 4 नंबर एंगल बात करूं, ओके, 4 नंबर एंगल अगर मैं बात करूं कॉट थीटा, कॉट थीटा होगा, कॉट थीटा इज नथिंग बट 1/10 थीटा व्हिच इक्वल टू p/b जो था ये हो जाएगा जस्ट b/p होगा। जस्ट रिवर्स कर रहे हो, p/b था, ये हो रहा है b/p हो रहा है। आप देख सकते हैं मैं एक नया चीज कुछ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टेन थीटा के साथ p/b था, यहाँ पे b/p हो गया। तो ये टेन थीटा के साथ कॉट थीटा इज इंटरलिंक। ओके, नेक्स्ट मैं बताऊं कि 4 नंबर के बाद 5 नंबर मैं बताऊं, अगर सेक थीटा, सेक थीटा का वैल्यू होगा 1/cos थीटा। 1/cos थीटा मतलब है ये है cos थीटा, अगर b/h है ये बन जाएगा h/b बन जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 6 नंबर। 6 नंबर इज 6 थीटा, दैट इज सेक थीटा के बाद कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा व्हिच इक्वल टू h/p। तो यहाँ पे हम लोग जो देखने के लिए मिल रहा है कि टेन थीटा कॉट थीटा के साथ लिंक है एंड सेक कोसेक थीटा जो है ये सेक थीटा के साथ जुड़ा है और साइन थीटा जो है आपका कोसेक थीटा से जुड़ा है। तो एक अगर तीनों एंगल हमको पता है तो रेस्ट तीनों जो है हम आसानी से निकाल पाएंगे, इस पे कोई दोहरान नहीं है। तो अगर मैं एक ट्रेंगल लेके देखूं, सेम ट्रेंगल को एक एग्जांपल से हम डिस्कशन कर लेंगे और जो हमको बहुत आसान हो जाएगा चीज को समझने में। यस, इस दिस एंगल में अगर ले जाऊं, मैं सब हटा दिया, एक राइट एंगल ट्रेंगल ABC, ABC is given, ABC here in triangle ABC, this is base is 3 is given and hypotenuse is given 5. Okay, the question is find, first question is find cot theta. Suppose question is cot theta. सेकेंड क्वेश्चन को आएंगे, पहले फाइंड कॉट थीटा। कॉट थीटा एक काठी में लिख देता हूं, सेक थीटा एंड टेन थीटा। ओके ओके, नाउ व्हाट इज गिवन हियर, द बेस इज गिवन एंड हाइपोटेन्यूज इज गिवन। एक अननोन क्वांटिटी जो है AB, परपेंडिकुलर इज नॉट गिवन, सो व्हाट इज गिवन। अगर मैं आंसर उनको सॉल्व करूं हियर, और मैं बात कर सकता हूँ हियर बेस इज गिवन, बेस इज गिवन 3 सेंटीमीटर, 3 यूनिट अभी हम लेके बात करते हैं, एंड हाइपोटेन्यूज इज गिवन 5। एंड नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P। P का वैल्यू अगर निकालना है, वी नो दैट दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम पे ये होता है, वी नो दैट h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर and p square equal to h square minus b square. That means p equal to h square minus b square का square root, and h is given 25, 5 का स्क्वायर जो होगा 25 माइनस 9 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये होगा 16 का स्क्वायर रूट व्हिच इक्वल टू 4 यूनिट। दैट मीन्स अगर b दिया, h दिया, अगर हमको मिल गया p, p is given, नॉट गिवन, वी फाइंड P is 4 सेंटीमीटर।
नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पहले तो हम आएंगे टेन थीटा को। टेन थीटा का वैल्यू क्या है, P बाई बी, हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। टेन थीटा का वैल्यू P बाई बी और P इज गिवन 4 एंड B इज हियर 3, सो टेन थीटा का वैल्यू होगा 4/3। कितना आसानी से हम निकाल दिए। और सिमिलरली मैं कॉट थीटा करूं, दो तरीका है। कॉट थीटा तो हम आंख बंद करके बता सकते हैं। टेन थीटा का जो वैल्यू है जस्ट उल्टा देंगे, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। अगर 4/3 है, कॉट थीटा का वैल्यू होगा 3/4, दैट मीन्स 3/4। ओके, और नेक्स्ट इज सेक थीटा। नाउ सेक थीटा इक्वल टू, वी नो दैट सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू था B/H और सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा H/B, H/B। हियर H इज गिवन 5 सेंटीमीटर और 5 यूनिट बाय B इज 3। सो मेरे कहने का मतलब है, अगर हमको इस टाइप का दो डाटा दिया, हम सारे एंगल निकाल दिए, यहाँ तो निकाल दिए कॉट थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा। और सिमिलरली वी कैन एबल टू फाइंड आउट साइन थीटा, योर कॉट थीटा, कोसेक थीटा एंड कॉस थीटा। सभी 6 को 6 एंगल हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। Dear learners, basically we have discussed about the trigonometric ratio right now, and that means trigonometric ratio means अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल पे कोई एक्यूट एंगल दिया है, उनका सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, दैट मीन्स साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, 6 के 6 वैल्यू हम वेरी इजीली हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। Right now we will be take a short break, then after we will be more discuss about trigonometric, particularly we will be discuss about trigonometric identity. Dear learners, we are discussing about trigonometric, particularly in the first phase we have discussed about trigonometric ratio. Right now we will be discuss about trigonometric identity, that means trigonometric identity. When talking about trigonometric identity, identity is nothing but a equation. इक्वेशन क्या है हमको पता है, टू फाइंड आउट, इक्वेशन पे यही होता है कि टू फाइंड आउट द अननोन क्वांटिटी एंड अननोन क्वांटिटी का वैल्यू जो है दैट विल सैटिस्फाई इन द इक्वेशन। और हम जैसे बात किया कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में हम फर्स्ट कैटेगरी ऑफ आइडेंटिटी बारे पे डिस्कशन करेंगे, जो आइडेंटिटी को बोलते हैं हम रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। ओके, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी वन कैटेगरी ऑफ आइडेंटिटी जिसके बारे में हम पहले भी थोड़ा सा हिंट दिए थे। साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। ओके, साइन थीटा का वैल्यू होगा 1/कोसेक थीटा। द सेकेंड फंक्शन है द कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू है 1/सेक थीटा। ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला को हमको दैट फॉर्मूला वी कैन से दिस इज द इक्वेशन एंड दैट इक्वेशन दैट वैल्यू थीटा वैल्यू इज सैटिस्फाइंग फॉर दैट इक्वेशन। ओके, नाउ साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, दिस इज द one of the identity. Second identity is cos theta equal to 1/sec theta. Third part is tan theta equal to 1/cot theta. फोर्थ में होगा sec theta equal to 1/cos theta. And fifth is the cos sec theta, sin cos tan sec cot थीटा का वैल्यू होगा 1/tan थीटा। एंड सिक्स्थ आइडेंटिटी इज योर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का वैल्यू होगा 1/sin थीटा। तो मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ, साइन थीटा का वैल्यू 1/कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा का वैल्यू 1/sin थीटा। अगर मैं उनको बात करूँ, दिस इज द इंटरलिंक इन द आइडेंटिटी, साइन थीटा के साथ कोसेक थीटा। नेक्स्ट इज cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। दैट मीन्स इट इज ऑल्सो दे आर इंटरलिंक्ड। नाउ tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा।
that means we can say this is tan cot, that means sin theta cosec theta के साथ रेसिप्रोकल है, cos theta किसके साथ है, sec theta के साथ, and tan theta cot theta के साथ. We can say tan theta cot theta के साथ, और we can say sec theta cos theta sec theta के साथ, and last one is we can say that is your sin theta जो है ये cosec theta के साथ we can say reciprocal है. The next identity we can say क्यूसेंट identity, जिसको हम tan and cot के बारे में हम बता सकते हैं. That is we can say क्यूसेंट, QUOTIENT, क्यूसेंट identity. ये क्यूसेंट आइडेंटिटी में ये साइन वी कैन से tan थीटा इक्वल टू tan थीटा का जो वैल्यू होगा दैट इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा का जो वैल्यू होगा दैट इज कॉस थीटा बाय साइन थीटा. दिस इज कॉल्ड द क्यूसेंट, वी कैन से क्यूसेंट आइडेंटिटी, एंड दीज आर द वी कैन से रेसिप्रोकल आइडेंटिटी. बहुत आसान है और चीज को समझना बहुत जरूरी. ये जो फॉर्मूला है tan थीटा का, नो डाउट tan थीटा इज ऑल्सो हम देख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot थीटा. उनका अनदर फॉर्मूला इज tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा. दिस इज द क्यूसेंट आइडेंटिटी, दिस इज द रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, एंड cot थीटा का वैल्यू 1 बाई tan थीटा, हियर cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा. दिस इज द अनदर वी कैन से अनदर आइडेंटिटी. नाउ another important identity we can say equation, that is called Pythagoras identity. Identity को हम equation बोल सकते हैं क्योंकि identity itself equation. This is called the Pythagoras identity. ये जो 6 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट कैटेगरी को हम आएंगे क्योंकि ये फॉर्मूला बिना हम जी नहीं सकते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री का देख नहीं सकते, ट्रिग्नोमेट्री को समझ भी नहीं पाएंगे. सो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको समझना और ये ट्रिक को भी समझ के साथ उनको याद रखना भी बहुत ज़रूरी है. नाउ वी विल कम टू द दैट इज क्यूसेंट आइडेंटिटी के बाद पाइथागोरस आइडेंटिटी. ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि साइन स्क्वायर थीटा, फर्स्ट फॉर्मूला जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होगा 1. That means that this is the equation and it satisfy the all situation, all context. Sin square theta plus cos square theta equal to 1. सेकेंड जो इक्वेशन है we can say sec square theta minus tan square theta equal to 1. The third is cosec square theta minus cot square theta equal to 1. These are the 3 important Pythagoras, we can say Pythagoras identity. Sin square theta plus cos square theta equal to 1. We can say sec square theta minus tan square theta equal to 1. Cosec square theta minus cot square theta equal to 1. ये this is the main we can say measure Pythagoras identity. Now अगर मैं बात करूं ये फर्स्ट फॉर्मूला को लेके बहुत सारे हम क्रिएट कर सकते हैं. जैसे मैं बताता हूं कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वी कैन से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उनको लेके अगर मैं और 2 फार्मूला निकाल सकता हूं. एक नंबर ए पे मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज यहाँ पे प्लस था, राइट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा. ये चीज भी ध्यान रख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और बी पे हम सिमिलरली लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ये फॉर्मूला आ जाएगा. सेकेंड में अगर ये इक्वेशन को हम दोबारा रिविजिट करेंगे और 2 फार्मूला निकल जाएगा. जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 टू ए पे ये फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. यस, क्योंकि सेक स्क्वायर तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड में प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा.
और दूसरा भी हम बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, बी पे हम कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। बहुत सारे फॉर्मूला आ जाएगा। अगर ये को थर्ड पार्ट को हम स्प्लिट करेंगे सिमिलरली, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 3a पे हम अगर ये फॉर्मूला को दोबारा हम स्प्लिट करेंगे, ये हमको मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बी पे हम मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट हैंड साइड में प्लस हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर मैं बात करूं कि कॉट स्क्वायर थीटा, अगर मैं बात करूं कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये +1 लेफ्ट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा। सो मेजर 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन में हम और 2 2 4 2 6 मतलब 9 इक्वेशन हम बना दिए। तो एक इक्वेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा वी कैन से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 3 आर द मेजर इक्वेशन। ये तीनों के लेके और 6 हम इक्वेशन बना दिए, लेकिन ये 6 जो है मेन 3 से ही डिराइव्ड है। राइट नाउ वी विल बी डिस्कस by taking certain problems that will be used in the trigonometry ratio, trigonometry identity। कैसे यूज करना है हम उनको बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हम तो फॉर्मूला बहुत सारे पढ़ लिए, पता भी चल गया, फॉर्मूला को कैसे यूज करना है प्रॉब्लम पे, उसको बारे में हम चर्चा करेंगे। राइट नाउ विल बी कम एग्जाम्पल 1, दैट इज प्रॉब्लम्स, फर्स्ट प्रॉब्लम इन दिस सेंस वी कैन से एग्जाम्पल 1 प्रॉब्लम्स इन ए ट्रायंगल ABC। आप ये क्वेश्चन को पढ़ सकते हो अच्छे से, क्योंकि पढ़ने के बाद हमको ये समझने में बहुत इजी होगा। जैसे मैं बात किए, इन ए ट्रायंगल ABC एंगल B इज द 90 डिग्री एंड important thing is angle B is equal to 90 degree, AB is given, BC is given, find the other 3 angles। What are the 3 angles, उसको बारे पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ तो ध्यान देना पड़ेगा कि हम कैसे ये फॉर्मूला को यूज करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और सबसे बड़ा है जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्वेश्चन को हम विजुअलाइज करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन इज गिवन इन ट्रायंगल ABC, दिस इज द ट्रायंगल ABC, थोड़ा सीधा कर लेता हूँ, ABC angle B is equal to 90 degree is given, and what is AB is given 5 centimeter and BC is given 12 centimeter। Okay, find the value of tan C। Yes, C, this is the angle C। Now question is, this is 12, this is 5. First question is asking what is the value of tan C। Dear learners, we know that tan C का फॉर्मूला क्या है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पे जो हम डिस्कशन किए थे, P by B, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। P by B is we can easily find out, no doubt। P by H, B by H, P by B। अगर मैं बताऊं tan C का वैल्यू दैट विल बी 5/12 बिकॉज वी नो दैट tan C का जो फॉर्मूला P by B। अगर कोसेक C, सेकेंड जो क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक C। कोसेक C का वैल्यू है, वी नो दैट कोसेक C का वैल्यू होगा 1 बाई साइन C, और साइन C का वैल्यू क्या है हमको पता है P बाई H, और कोसेक वैल्यू का वैल्यू होगा H बाई P, दैट मीन्स और H बाई P होगा। और H बाई P, हियर P इज 5 एंड दिस इज B। H हमको पता नहीं है, हमको H का वैल्यू पता नहीं है क्योंकि नॉट गिवन। अगर नॉट गिवन, अगर दिया नहीं तो हमको निकालना पड़ेगा व्हाट विल दैट वैल्यू। अगर मैं बात करूं इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज H स्क्वायर विल बी P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर H का वैल्यू निकालो, H स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल टू, वी कैन से H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का स्क्वायर रूट। हियर P इज गिवन 5 का होल स्क्वायर
प्लस B12 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट which equal to 25 प्लस 144 का स्क्वायर रूट which equal to 169 का स्क्वायर रूट व्हाट इज 13। दैट मीन्स h का जो वैल्यू हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 अपॉन p is given 5. So sometimes the exact value is not given, we have to find out the value of h. And सबसे बड़ा important thing है कि हम PHB that is perpendicular, hypotenuse और base हमको पता है, कोई भी एंगल पूछो, tan हो कि sec हो कि sin हो कि cot हो, सभी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन इज गिवन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sec c। sec c का वैल्यू क्या होगा? sec c का वैल्यू हमको पता है, sec c इक्वल टू 1 बाई cos थीटा एंड cos c here थीटा इज c स्मॉल c 1 बाई cos c एंड cos c का जो वैल्यू है हमको पता है cos c का वैल्यू है b बाई h और sec c का होगा b बाई h जगह पे h बाई b होगा, क्योंकि cos sec जो है ये इंटरलिंक है, इंटरचेंजेबल है, सो होगा h बाई b। That means h by b, h is we have already find out 13 and base is given 12. Similarly ये तो तीनों एंगल पूछा, कोई भी एंगल अगर मैं बताऊं, सिमिलरली अगर मुझे लेना है tan c तो ऑन निकाल सकते हैं, cot c तो जो tan c का रिवर्स होगा, p by b था b by p होगा, that means 12 upon 5 होगा आपका cot c। दैट मीन्स कोई भी वैल्यू हम आसानी से हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी एज वेल एज ट्रिगोनोमेट्रिक आपका आइडेंटिटी हो कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो। राइट नाउ एक ट्रायंगल दिया है, हम इसका प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। जैसे एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, जैसे हम पहले ही बनाए थे, इस टाइप का ट्रायंगल है और उनका जो है हाइपोटेन्यूज एंड बेस एंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है हाइपोटेन्यूज बेस एंड आपका परपेंडिकुलर, ये तीनों को लेके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे कि ट्रायंगल ABC, इन द ट्रायंगल ABC व्हाट इज गिवन, AB is given 21 centimeter, that means AB is given here, AB equal to 21 centimeter and question is BC is given 20 centimeter, BC is given 20 centimeter, okay, and what will be, and AC is given 29 centimeter, सारे दिया है, AC is given 29 centimeter. The question is find the value of sin theta, cot theta, sec theta. Okay, question is given, find the value of sin theta. Second question is cot theta and sin theta, cot theta and sec theta. तीनों वैल्यू पूछ रहे हैं. What will be the value of 3 sec theta? Now what is the value of sin theta, cot theta and sec theta? And you know that value angle is theta. Angle C equal to theta. So now we know that AB, BC, AC ये तो already given, or we can say AB is nothing but the perpendicular, BC is nothing but the base, AC is nothing but the hypotenuse. Okay, three base, hypotenuse and perpendicular already given. हमको तो ऐसे लग रहा है कि पुटिंग द फार्मूला गेटिंग द आंसर, जस्ट हम जो फार्मूला हम पढ़े हैं वो फार्मूला को हम यूज करना है और डायरेक्टली आंसर निकाल देंगे आसान तरीका से। जैसे साइन थीटा का फार्मूला है, वी ऑलरेडी नो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, पी बाई एच मतलब पी बाई एच दैट मीन्स ए बी बाई एस सी, दैट मीन्स 21/29 एंड कॉट थीटा का वैल्यू वी नो दैट P by B tan theta B by P हो जाएगा, that means B by P, that means B is given 20, B by P is given your 21 and similarly sec theta का वैल्यू है हम लोग जानते हैं 1 by cos theta का वैल्यू है आपका B by H और sec theta होगा H by B, that means H is given 29 and base is given
your 20. So, this is the value. So, dear learners, very important thing is by using that trigonometric identity, by using that trigonometric we can say ratio, we can able to find out any sides, any angle of a right angle triangle that we have learned in our trigonometric. Dear learners, in our next class we will be more discuss about trigonometric identity and how we use that trigonometric identity in the different context, different situation, and also how it helps to learn the other subjects. I hope that you have enjoyed learning with me, and in our next class we will be more discuss about trigonometric function, particular trigonometric ratio, trigonometric identity. Thank you.